Hello, everyone. So, today we are starting a new topic, globalization. Till now, we have finished our topic, liberalization and privatization. So, now, third policy which was taken in new economic reform is globalization. That in details we are going to study. Okay, so all are ready? So, globalization means a process which increasing openness of growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy. Means it is a process which is increasing openness means other can enter in our country, and through which economic interdependence increases. Economic interdependence means when we are selling or purchasing from other nations, so we have to pay them or either we will be going to receive them. So that is growing interdependence and deepening economic integration in the world economy. And integration, you all are knowing, so unity will be going to increase in the world when we are doing globalization, because globalization means foreigners can come to our country, we can go to their country and we can do a business. So when we are joining with others, so we will first make them as a friend. So due to this friendly relation, our unity will be increasing, our interdependence will be increasing, our trust will be increasing, which will help for the growth of our nation, even their nation. So due to that, this globalization enter. As a result, there will be unrestricted flow of goods and services, technologies, and expertise between India and rest of the world. So what happened? We are getting now unrestriction, means there is a no restriction of goods and services which we can purchase and which we cannot sell, and we can hire any of the technology from the other countries. Even we can call their experienced persons also in our nation also. So this all benefits we are getting after the globalization only. So particularly it is expected that capital and technology will flow from the developed country to the world towards India. So main thing what we are doing, if we are poor, so we will be trying to a rich person to enter in a country. So same way we are poor in a technology, so we are taking from that, we are hiring or we are purchasing that technology from the developed nations. So developed countries will be supplying goods and technology to our country India when we have started globalization in our nation. So meaning of globalization is clear. What is globalization? Now, outsourcing. Outsourcing topic already you have studied in business last year. Anybody is remembering what is outsourcing? Outsourcing is one outcome came from globalization. Means when two nations are doing business combinedly, then this technique outsourcing is started in our nation. It refers to a system of hiring business and services from the outside world. See, I'm giving an example. Suppose we have to purchase, we are bringing bullet train in our nation, and if we are purchasing that bullet train, then it will be taking so much money. It is of million billion rupees. So we have to pay together to the foreign nation from where we are purchasing. So instead of that, we are hiring the things from the developed nation. So we are taking on a rental basis from the outside nation, like example call centers, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग्स, कोचिंग्स. आजकल बाइजू जो है क्या है, इंडिया को तो नहीं है, बाहर का ही है. तो ये वेदांतु वगैरह सब क्या है, टीचिंग सेंटर्स जो हैं, आउटसोर्सिंग ही है. बाहर वाले चैनल्स हमारी कंट्री में फ्लरिश कर रहे हैं. फेसबुक वगैरह सब हमारी कंट्री में आउटसोर्सिंग ही है. बाहर की सर्विसेज हम हायर कर रहे हैं और उससे हम अपने नेशन को डेवलप कर रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. So India is an important destination of outsourcing, that is business process outsourcing, which is called as call center. तो इंडिया ने सबसे मेन आउटसोर्सिंग कौन सी यूज़ करी है? कॉल सेंटर, जिसको BPO भी कहते हैं. जिसके लिए हमारी कंट्री में क्या होता है, चीप लेबर अवेलेबल होते हैं और लो वेजेस में लेबर रहते हैं. इसीलिए
आईटी इंडस्ट्रीज़ ने हमारी कंट्री में कॉल सेंटर्स खोल दिए हैं क्योंकि यहाँ उनका खर्चा कम रहता है. तो इंडिया इज़ रिच इन बीपीओ, दैट इज़ कॉल सेंटर्स हमारी कंट्री में बहुत ओपन हो गए हैं. क्लियर नाउ दिस globalization meaning and outsourcing meaning is clear or not? Our next topic is policy strategies promoting globalization of the Indian economy. Means what are the policies? What are the strategies taken by our country to promote globalization in our Indian economy? Means more persons, more businesses can enter from the foreign countries in our country. So what are the policies and steps we have taken? So that points we are going to study here. First is increase in equity limit of the foreign investment. So now increase in equity limit means पहले उनकी limit बस क्या थी, 40% they can invest in our country, but now they can invest fully also. तो ये ranges बढ़ा दी गई हैं. So अब वो अपनी खुद की पूरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. पहले क्या होता था, इंडिया का पोर्शन ज़्यादा इन्वेस्ट रहेगा और फॉरेनर्स का कम रहेगा. धीरे धीरे अब इक्वल कर दिया. इवन दे कैन इन्वेस्ट मोर ऑल्सो इन आर नेशन. So in 47 high priority industries, FDI, that is foreign direct investment, to the extent of 100% has been allowed without any restriction and red tapeism. रेड टेपिज्म मीन्स तानाशाही, मतलब किसी की कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं चलने वाले, किसी के कोई रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं होने वाले. 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में FDI कर दिया है. FDI मीन्स फॉरेनर्स कैन इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस. एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज हैज़ बीन अलाउड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 100%. तो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस जो हैं, मतलब जो हम बेच रहे हैं उसमें भी 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा है जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. सेकेंड पॉइंट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी. पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इज़ द अनदर मेन ऑब्जेक्टिव where we are what doing, partial convertibility of Indian rupee has been allowed. मतलब हमारे इंडियन रुपीज़ को थोड़ा कन्वर्ट कर दिया जाता है उनकी पेमेंट करने के लिए. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जब हम करते हैं तो थोड़े पैसे इंडियन करेंसी के उनमें कन्वर्ट करके उनको पेमेंट कर दी जाती है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड देना रहता है, तब हम उनकी मनी उनमें कन्वर्ट करके देते हैं. रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, तो अगर हमें अपनी फैमिली को खर्चा भेजना है बाहर तो हम लोग अपनी मनी को कन्वर्ट करके भेजेंगे क्योंकि वहाँ तो यही मनी यूज़ होती है. सो दैट इज़ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी दे आर डूइंग. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी. लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी इज़ दैट पॉलिसी विच आर गिविंग बेनिफिट फॉर द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. सो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं लंबे समय के लिए, उनको कहा जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी. तो इन पॉलिसीज़ को भी इनने लिबरल कर दिया. दे हैव रिमूव ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, मतलब सारे रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल ख़त्म कर दिए. कंपटीशन ओपनली कर दिया है, मीन्स नोबडी इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड, एनीवन कैन एंटर एंड एनीवन कैन डू देयर बिजनेस. रिडक्शन इन टैरिफ. टैरिफ मीन्स टैक्स रेट्स. तो टैक्स रेट्स वगैरह कम कर दिए हैं जिससे कंपटीशन बढ़ गया है. कंपटीशन बढ़ने से हमारे यहाँ आना जाना, मनी मार्केट, FDI इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा है. देन विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन. विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मीन्स कोटा सिस्टम भी ख़त्म कर दिया है. नहीं तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या था, दे आर फिक्सिंग द आउटपुट दैट हाउ मच वी हैव टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच वी हैव टू सेल. सो दैट कोटा सिस्टम ऑल्सो एंडेड. So these all things were changed in the policies which will make, these are the new policies which are promoting globalization in our nation. Clear all the points? Now WTO is given, and in box side they have given tariff and non-tariff barriers. So listen, these things also 1 marks questions, they are important. Tariff barriers means barriers on import through high import duty. Means when we are purchasing goods from the foreign countries, the tax rate is very high, import duty is very high. That is called tariff barrier. Non-tariff barrier means these quotas and quantitative restrictions are not removed, so that is non-tariff barrier.
Then World Trade Organization. World Trade Organization is given on page number 103. So World Trade Organization, you all are knowing we are not saying World Trade Organization. We are using its abbreviation WTO. WTO is the organization which is started on 1st January 1995 under Marrakesh Agreement signed by 123 countries. मतलब WTO अभी भी देख रहे हो कोविड-19 में WTO ने ये प्रेडिक्शन करी, WTO ने ये बोला, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 123 कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें इट इज़ रिप्लेस्ड बाय, तो पहले माराकेश एग्रीमेंट था, वो नाम चेंज करके गैट कर दिया गया, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. गैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948 विथ 23 कंट्रीज. तो ये गैट चालू करा था 1948 में 23 कंट्रीज़ में. अब धीरे धीरे ये ग्लोबल मार्केटिंग बढ़ती जा रही, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट चालू हो गए, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में परचेजिंग एंड सेलिंग चालू हो गई. तो हम लोगों ने फिर और बिजनेस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंशन हुआ. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी है ग्लोबलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी परचेजिंग सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, जिससे बेनिफिट होता है कंट्रीज़ को. तो WTO इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स. तो WTO ने कहा कि हम ट्रेड तो करेंगे फॉरेन नेशंस के साथ, मगर वहाँ पे कोई टेरिफ बैरियर्स और नॉन टेरिफ बैरियर्स नहीं होंगे, मतलब टैक्स रेट के कोई नियम कानून नहीं होंगे, यू आर फ्री. देन इट इंटेंड्स टू प्रमोट कंपटीशन एंड ग्लोबल मार्केट. तो इनका सेकंड मोटिव था कि हमें ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना है. थर्ड, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट बायलैटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल एग्रीमेंट. इनने हेल्प करी बायलैटरल एग्रीमेंट बनाना. बायलैटरल एग्रीमेंट मीन्स दो नेशंस के बीच में जो दो नेशंस के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको कहते हैं बायलैटरल. दो या तीन से ज़्यादा नेशंस के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको कहते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट. तो इनने ये सिस्टम चालू करा कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं दूसरे नेशंस के साथ तो आपको एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे, या तो बायलैटरल या तो मल्टीलेटरल. इट इज़ टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज. तो इनने एक रूल और बनाया था कि हमें ये भी ध्यान देना है कि वर्ल्ड के साथ जब बिज़नेस कर रहे हैं तो वर्ल्ड में जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में सप्लाई करना है. अब पहले 1995 में जब WTO बना था तो उसमें कितने मेंबर्स थे? 123 कंट्रीज़ मेंबर थी. अब 2016 में WTO में कितने मेंबर्स हो गए? 164 कंट्रीज़ मेंबर बन गई हैं WTO की. सो इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन इकनॉमी. तो इंडियन इकनॉमी में WTO का क्या इफ़ेक्ट आया? तो पहला इफ़ेक्ट, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट WTO विल ऑफर ग्रेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी. हमने सोचा था कि WTO हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की परमिशन देगी, हमारा इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस बढ़ जाएगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे. अंडर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट आर टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स वो सब्जेक्ट टू कोटा रिस्ट्रिक्शन. एज पर प्रोविजन ऑफ WTO ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन रिमूव. तो मालूम है पहले हमारे टेक्सटाइल और गारमेंट बिजनेस में कोटा सिस्टम था, तो WTO ने ये कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया और उनने हेल्प करा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड इवन गारमेंट प्रोडक्ट्स. और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने की परमिशन हो गई हमें अमेरिका यूरोप कंट्रीज़ में, जहाँ हमारी डिमांड बढ़ती जा रही. इट वॉज प्रमोटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जिसके कारण हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ने लगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी. ड्यू टू एग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स. तो ट्रेड बैरियर्स रुकावटें जो हैं उनमें जो आपने फिक्स करा कि सब्सिडीज़ कम कर देंगे एग्रीकल्चरल गुड्स में, प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज. तो इनने ये एग्री करा था कि टैक्स रेट्स कम होंगे, सब्सिडीज़ कम होंगी, तो उससे ये इफ़ेक्ट आएगा. बट इट वॉज नोटेड with emphasis that WTO agreement is offering only an asymmetric treatment, something which is not uniform.
फॉर ऑल नेशन। बट जब हमने देखा तो ये देखा कि WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन हर नेशन के साथ अलग अलग है। सो टू कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, सब जगह अलग अलग। WTO advocates free movement of capital across different nations, not the free movement of labor, while both labor and capital are the commodities of actor market. तो WTO ने क्या करा कि बस कैपिटल फ्री है, कहीं पे भी आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर लेबर्स फ्री नहीं है, कहीं पे भी कितने भी लेबर्स हमारे नेशन के दूसरे नेशन में नहीं जा सकते हैं। तो कैपिटल फ्री है, कहीं पे भी जितना इन्वेस्ट करो, जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज खुलेंगी और दे कैन एक्सप्लॉइट लेस डेवलप मार्केट, जिससे लेस डेवलप मार्केट ख़त्म होगी, एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म होगी। और लेबर्स धीरे धीरे फिर उनने सोचा कि लेबर्स को इनकरेज करेंगे, लेबर्स को भी फ्री रखा फैक्टर कि वो भी जाकर एक जगह से दूसरी जगह हाई वेजेस पे काम कर सकते हैं। तो ये सारे डिसीजन WTO ने लिए। क्लियर? नाउ न्यू टॉपिक, an appraisal of LPG policy. Anybody can now give me the full form of LPG? It's a cylinder, liquefied petroleum gas, or any other name, full form. Yes, here we are using LPG full form is liberalization, privatization and globalization. सो परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म मीन्स हमारी कंट्री में जब रिफॉर्म पीरियड आया तो हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस आई। तो सबसे पहले हमारी कंट्री में LPG एंटर हुआ। LPG का फुल फॉर्म सबको मालूम है। सो LPG implies an appraisal in NEP मीन्स LPG से सबको उम्मीदें थी, हमें लगा था हमारी कंट्री में चेंजेस होंगी, न्यू चेंजेस होंगी। सो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में चालू करा था। एंड अप्रेजल ऑफ LPG और NEP रिक्वायर्स दैट रीडर्स अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड द गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ NEP। तो इस अप्रेजल में सबसे पहली चीज़ थी कि हमें समझना है ये रिफॉर्म पीरियड से हमें क्या गुड इफ़ेक्ट हुए, क्या बैड इफ़ेक्ट हुए, और फिर रिफॉर्म पीरियड में अगर और कोई चेंजेस की ज़रूरत होगी तो वो चेंजेस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी में गुड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट समझने हैं। अब हम एक एक पॉइंट बोले, आप लोग समझाओगे, समझा पाओगे? First good point is vibrant economy. What do you mean by vibrant? वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? चेंज और इंक्रीज। तो वाइब्रेंट इकोनॉमी हेयर ऑल्सो मीनिंग changes were happening in our country and that changes is improving। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सुधरती जा रही थी, हमारी GDP इंक्रीज होती जा रही थी और हमारी GDP 8% से का बढ़ गई थी, ग्रोथ ऑफ GDP, और हमारी ग्रोथ होने लगी। तो फर्स्ट गुड इफेक्ट इज दिस। सेकेंड इज स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेंट? Yes, according to this, here stimulant means increasing only. तो increasing in industrial production, ठीक है। रेसिस्टेंस पावर हमारा चेंज होता जा रहा है। तो हमारी इन पॉलिसीज से, LPG पॉलिसीज से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। फिर चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है करेंट ईयर बजट का डेफिसिट। जो करेंट ईयर हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है हर साल 1 अप्रैल को, जो चालू होता है 31 मार्च तक, तो उसमें गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी इनकम्स आती हैं। तो जब इनकम कम आती है और खर्चे ज़्यादा जाते हैं तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। When current year expenditures are more and current year incomes are less, then that deficit is called as fiscal deficit. So we can check our deficit also. तो mounting fiscal deficit has a serious threat to the process of investment. अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत आई है तो हमें एकदम सोचना पड़ेगा कि अब इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करा जाए कि ना करा जाए,
क्योंकि जब हम घाटे में होंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो वो घाटा लगने के और चांसेस होते हैं। फिर इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारी कंट्री में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एंटर हो गया। सो फॉरेनर्स आर एंटरिंग एंड डूइंग बिजनेस, जिससे फॉरेन करेंसी भी हमारी कंट्री में आने लगी। सो इसमें दिया ही है फॉरेन एक्सचेंज पहले 6 बिलियन था, अब हमारे यहाँ 579.346 बिलियन हो गया है। सो good amount of foreign exchange is increasing in our Indian country. Check on inflation. Inflation means price rise. तो प्राइस राइज कब होती है? जब डिमांड हाई होती है। तो दे आर चेकिंग द प्राइस राइज, दैट इज दे आर चेकिंग इन्फ्लेशन, व्हाट आर द रीजंस दैट इन आवर कंट्री इन्फ्लेशन इज देयर। तो हमें इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई इज नॉट गुड फॉर आवर नेशन, सो वी हैव टू डिक्रीज दिस इन्फ्लेशन परसेंटेज। जैसे मालूम है 2011 में हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने, उस समय भी सिचुएशन यही आ गई थी कि हम लोग एकदम लॉस में जा रहे थे, बट उनकी पॉलिसीज़ ने हमें सेव कर लिया। सो सेम अभी भी पोजीशन आ रही है, प्राइस राइज होने लगी है, लोगों के पास मनी मार्केट कम है। सो RBI एस्टिमेट सेवरल इन्फ्लेशन पॉलिसीज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वो सॉल्व करने के लिए क्या करती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ा देती हैं। तो जिसके कारण लोग जैसे कम इन्वेस्ट करेंगे, उनकी इनकम कम होगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी मीन्स कंज्यूमर को हेड रखना है, उनके बारे में सोचकर ही गुड्स बनाने हैं। पूरे ग्लोबल मार्केट में कंज्यूमर्स को ही, मतलब बायर्स के ही बारे में सोचा जाएगा, उनकी चॉइस के बारे में सोचा जाएगा, वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी इनकम का, उस हिसाब से ही हम लोग गुड्स बनाएंगे। देन फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीन्स प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया, प्राइवेट वाले फॉरेन कंट्रीज के ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं हम लोगों के नेशन में। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो LPG पॉलिसीज के कारण क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंट राइज होता जा रहा है, हमारे यहाँ राइज होता जा रहा है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज एज एन इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है आज मेन इकोनॉमिक पावर काउंट होने लगी है वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली बाय डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की पोजीशन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स रेडी हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। हमारे यहाँ मोनोपोली मार्केट को ख़त्म करके कॉम्पिटिटिव मार्केट हम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट मीन्स जहाँ लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन्स होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे और लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस करने को पसंद करेंगे। नाउ सी ऑल दीज पॉइंट। Keep studying.